Welcome back. We were doing the chapter organizing, and in the last class, we have done what is organizing, the steps in organizing, and then the importances. That is, we have done three importances. Now we are moving towards the fourth one. In the last class, we had discussed that while we organize the things, we organize the structure, we organize our company. So the very first what we come is that there is benefits of specialization. क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट बना रहे हो अकॉर्डिंग टू द इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, इट कैन बी अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट्स, तो उस पर्टिकुलर चीज पर आप स्पेशलाइज कर रहे हो. देन देयर इज अ क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशंस. And last but not the third one which we learned was optimum utilization of the resources. The fourth is adaptation to change. एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन आता है हमारे पेपर के अंदर that sometimes a company might be having one or two products, similar lines, but now the company wants to add on the products. अब वो products को add करना चाहते हैं. तो ऐसे में क्या होता है, अगर एक स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है तो इट इज इजी टू अकोमोडेट दोज चेंजेस. प्लस जितनी चेंजेस हमारे एनवायरमेंट में आ रही है उनको भी वी आर एबल टू सूटेबली मॉडिफाई. The process of organizing allows a business enterprise to accommodate changes in the business environment. It allows a structure to be suitably modified. बच्चा स्ट्रक्चर अभी हम पढ़ेंगे. What is actually structure? And also the revision of the interrelationship among managerial levels to pave the way for a smooth transition. कैसे हम एक सिंगल प्रोडक्ट से मल्टी प्रोडक्ट में जा सकते हैं. what are the things we need to modify? That is easy. It also provides much needed stability to the enterprise as then it continues to survive and grow in spite of changes. See, you might have seen, अगर आप लोग बिजनेस न्यूज से वाकिफ हो, if you are well aware with the business news, then you must have seen that there are so many companies which come up with a very good product and over a period even they boom up, बहुत boom up भी करते हैं. लेकिन बाद में क्या होता है, एक टाइम आता है दे आर नॉट एबल टू, मतलब कि व्हेन देयर इज समथिंग ग्रोथ और समथिंग लाइक दैट, तो दे आर नॉट एबल टू अडाप्ट. और तब प्रॉब्लम आती है द चेंजेस, तब आती है द कंपनी मे नॉट सर्वाइव. देर आर सो मेनी व्हाट यू कॉल एज एग्जाम्पल्स फॉर दीज. The edtech companies, there are many edtech companies. Edtech मतलब जो education से related है. They grew, they even made profits, they expanded. लेकिन जब वो transition आता है ना, जब हम add on करते हैं, तो we are not able to balance किस चीज पर हमें ध्यान करना है, कहाँ पर हमें modify करना है. And there comes the organizing structure, and there comes कि अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग नहीं है तो देन द कंपनी मे नॉट गिव प्रॉफिट और इट मे नॉट सर्वाइव. सिमिलरली देर आर मेनी कंपनीज जिन्होंने बहुत, मतलब इफ आई से नॉट कंपनीज, आई कैन से दे आर बेसिकली इनटू द एजुकेशन. दे ग्रू नंबर वन, in fact number one. But then when the changes had to be announced, the company, the area, the enterprise could not work.
इसके लिए हमारा जो बेसिक होता है ना वो जरूरी होता है। इसीलिए कंपनी के बेसिक्स पर काम करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने बेसिक्स को क्लियर करो। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि आपका एक हिरार्ची बनता है, कौन किसके नीचे काम करेगा, who is responsible, who is accountable, यानी कि there is clarity in the working relationship and it helps, क्योंकि जिसको आपने काम दिया है, if the person has to return back, he is responsible, यानी कि आपके और उसके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप बना हुआ है। एंड दैट ब्रिंग्स, क्योंकि कि सबको थोड़ी जाके पूछा जाएगा, जिस काम को जिसको दिया, if the work has been allocated to the marketing department, marketing manager, marketing regional manager, then only that person will be there, तो उसको हम बुलाएंगे ना कि why the work has not been done and he knows कि ये काम मुझे करना है, तो there is a clarity. मोर ओवर, अभी हम लोग एक लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, लास्ट कंसेप्ट, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन। तो इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, जब हम सोल बोलते हैं मतलब वहां पर हम लोग एक हिरार्की नहीं बनाते। मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द सोल एंटरप्रेन्योर, बट इन अ कंपनी वी नीड टू सेट अप अ प्रॉपर मैनेजरियल हिरार्की। कंपनी छोटी है, 4 मैनेजर्स हैं, कंपनी बहुत बड़ी है, 40 मैनेजर्स हैं। नाउ ईच ऑफ दीज मैनेजर्स आर इक्विप्ड विथ सम अथॉरिटी, सबको कुछ अथॉरिटी दी जाती है एंड दे आर ऑल्सो गिवन दिस अथॉरिटी कि वो अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके नीचे जो लोग काम करेंगे उनको वो काम दे सकते हैं। तो नाउ व्हाट इट मींस इज कि जो हिरार्की के अंदर रीजनल मैनेजर, जनरल मैनेजर, देन आपका जोनल मैनेजर, उसके नीचे एवरीवन इज गिवन सम काइंड ऑफ अथॉरिटी। हर मैनेजर हर काम को पूरा नहीं करता है, उसका टीम होता है, उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो मैनेजर है ही इज नॉट गोइंग टू डू ऑल द वर्क, तो रिड्यूस हुआ वर्कलोड उसका। एंड जब वो अपने काम को अपने सबॉर्डिनेट्स को बांट रहा है, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं दे आर डेवलप और कंपनीज में होता है क्लास 12 कि एक सीनियर पोजीशन में अगर कोई जा रहा है, मे बी द पर्सन इज रिटायरिंग, मे बी द पर्सन इज लीविंग द जॉब, तो जो नेक्स्ट लेवल पर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ही गेट्स द चांस टू बी प्रमोटेड टू दैट पोजीशन, यानी कि अगर ही इज केपेबल, यानी डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग द मेंबर्स। इफेक्टिव डेलीगेशन, नाउ डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम में से कुछ काम को पर्पसफुली, deliberately to share with someone else by to reduce their workload by assigning routine jobs to the subordinates. The reduction in workload by delegation is not just necessary because of the limited capacity of an individual, but allows the manager to develop new methods and ways of performing tasks. It gives them the time to explore areas for growth and opportunity to innovate, thereby strengthening the company's competitive position. Delegation also develops in the subordinates the ability to deal effectively with challenges and realize their full potential. In the real life, this is one of the very, very practically applied things. बाकी में से सबसे ज्यादा ये प्रैक्टिकली होता है क्योंकि डेलीगेशन इज डेलिब्रेट,
वो तो करना ही होता है. नो मैनेजर कैन डू ऑल द वर्क. अगर वो प्रोडक्शन मैनेजर है तो जाकर खुद थोड़ी मशीन पर बैठेगा. So that means he is going to delegate some of his work. मतलब वो अपने काम को किसी और के साथ शेयर करेगा. Maybe the official में जो होगा he would be sharing with one of it. तो इससे क्या होता है, उसके पास अपने पास टाइम होता है to work on the core area, and जो उसके साथ में है they are also able to develop themselves. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये बिल्कुल अडेप्टेशन टू चेंज को रिलेट करता है. Organizing helps in the growth and diversification of an enterprise by enabling it to deviate from existing norm and taking new challenges. For example, it allows, ये पेपर में आया हुआ है बच्चे, दिस ये वाला जो वर्ड है ये पूरा, ये पूरा आया हुआ, and this comes under expansion and growth. Identify the importance. As I said, your company might be having only one product, so you may be adding. Your company may be having one or two department. Your company may be having few job positions. तो जैसे जैसे आप एक्सपैंड कर रहे हो, बढ़ रहे हो, आप उसमें ऐड कर सकते हो. आपको पता है किस एरिया में हमने इसको ऐड करना है. न्यू ज्योग्राफिकल टेरिटरीज, लाइक अभी आपकी कंपनी सिर्फ ईस्ट को डील कर रही है. इन द कमिंग फ्यूचर यू आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट टू द वेस्ट, तो यू विल बी इजीली, आप एक मतलब कि अलग सा एक सेट कर सकते हो. हाउ टू, अगर आपको लगता है जो आपके ईस्ट में काम करने वाले हैं उनको ट्रांसफर करके यहाँ पर उनको ट्रेनिंग देनी है, वो आप दे सकते हो. Thus, organizing is a process by which manager brings order out of chaos, removes conflict among people over work or responsibility sharing, and creates an environment suitable for teamwork. Now, बार बार हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग. हमने ये भी पढ़ा इन द समरी, ऑर्गेनाइजिंग मतलब हर चीज को ऑर्डर में रखना, एस्टैब्लिश करना, कौन करेगा कैसे करेगा, उसको एक नाम देना. वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द प्रोसेस, दैट इज आपको पहले डिविजन करना है, काम को आइडेंटिफाई करना है, डिवाइड करना है, उसको डिपार्टमेंटलाइजेशन देकर उसको एक नाम देना है. देन जो उसको अथॉरिटी रखेगा उसको देना है, एंड देन द वर्किंग रिलेशन हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड. तो इसमें जो पहला आपका होता है, मतलब देर आर टू एस्पेक्ट्स, देर आर टू एस्पेक्ट्स. एक होता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब जो काम आपका होना है. आपको याद होगा क्लास 12 पहले वाले चैप्टर में देयर वाज वन दैट मैनेजमेंट इज 3 डायमेंशनल. इफ यू रिमेंबर, मैनेजमेंट इज 3 डायमेंशनल, एंड उसके अंदर लिखा था, मतलब मल्टी डायमेंशन, एंड उसके अंदर लिखा था मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल. याद है आपको? तो जो ये मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, जो वर्क है या फंक्शन है या जो पीपल है, यही आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में आता. तो हम काम को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड जो लोग होते हैं जो एस्टैब्लिशिंग द कम्युनिकेशन रिलेशनशिप है, कौन किसको जवाबदारी है, द रिलेशनशिप, कौन आपका अथॉरिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ द मतलब कि आपका डील होगा, हाउ द कम्युनिकेशन विल पास, ये आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशनल. ये आगे आएगा आपका, which we will not be, ये दिस इज आपका ऑर्गेनाइजेशन. तो पहला हमारा है स्ट्रक्चर. द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर का मतलब होता है हम काम को किस बेसिस पर डिवाइड करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस वी आर गोइंग टू
डिवाइड द वर्क, ये आप लोग जो देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चर। तो काम को हम डिवाइड कर सकते हैं, लाइक आपका पूरा कॉस्मेटिक्स एक डिपार्टमेंट है, आपका गारमेंट एक है, फुटवियर एक डिवीजन है, स्किन केयर है। और सेकंड हो सकता है आपकी कंपनी में ओनली मे बी मोबाइल्स एंड टैबलेट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, ओनली क्लोथिंग मैन्युफैक्चर होता है। तो देन आपको जो है अलग अलग डिवीजन नहीं बनाना है। आई रिपीट, डिवीजन नहीं बनाना है। तब आप क्या करते हो, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, मतलब इफ दे आर इन द सिमिलर लाइन, एक जैसे उनके फंक्शन हो, तो देन वी डिवाइडेड इनटू, ऐसा हम करते हैं जैसा आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो दिस वी कॉल एज organizational organization structure. Now, as per your syllabus, as per your questions, when this question comes, you have to first of all understand, एक नीचे ऑर्गेनाइजेशनल लिखा, यहां ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है काम को हम किस तरीके से वी आर गोइंग टू डिवाइड, whether the work will be divided on the basis of the products, cosmetics, footwear, clothing, or it is going to be divided on the basis of the functions we are performing, that is HR, production, sales. ये होता है organization structure. Organization structure is the outcome of organizing process. An effective structure will result in increased profitability of the enterprise. The need for an adequate organization structure is felt by an enterprise whenever it grows in size or complexity. It is only those enterprises which do not focus on growth that can maintain a particular structure for a लॉन्ग टाइम। अब ये जो बता रही हूँ ना, दिस इज हाउ, पता कैसे होता है। मान लो योर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग ओनली फुटवेयर, ठीक है, सिर्फ फुटवेयर मैन्युफैक्चर करता है। तो तब क्या होता है, आपको सिर्फ इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना। बट ओवर द पीरियड आपके प्रोडक्ट्स इंप्रूव हो गए, इंक्रीज हो गए, आप फुटवेयर को छोड़कर यू आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स कॉस्मेटिक्स, यू आर ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स। वहां पर क्या होगा, आपको अपने स्ट्रक्चर में चेंज करना होगा, क्योंकि इसी के अंडर आप सारे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। यू कैन ऑन अ रॉ वे, आप समझ सकते हो कि कॉस्मेटिक्स का जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अलग होता है, वेरएज फुटवेयर का आपका अलग होता है। फुटवेयर के लिए जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लिए जो फंड रिक्वायरमेंट होता है वो अलग होता है। सो दैट मीन्स फुटवेयर एंड आपका जो कॉस्मेटिक्स है ये दो अलग अलग है। सो वी नीड टू पुट टू डिफरेंट डिविजन्स, एक कॉस्मेटिक पूरा, उसके अंदर उससे रिलेटेड वाले, एंड दूसरा फुटवेयर उससे रिलेटेड। तो वी हैव टू, ये जो लिखा है ना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, हम एक नहीं रख सकते, वी हैव टू एड ऑन। However, it is to be understood that such stagnancy may prove to be detrimental. Detrimental मतलब diminishing या फिर destroying for an enterprise, as those companies which do not change will close down or cease to grow. As I gave you this example, I'll also discuss about it later. As an organization grows, coordination becomes difficult due to emergence of new functions, increase in structural hierarchy. Thus, for an organization to function smoothly and face the changes, it becomes necessary to pay attention to its structure. Structure, as in simple word, as I said,
जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारे कंपनी में फंक्शंस होंगी, उनको डिवाइड करना. नाउ द डिविजन कैन बी बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट और ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस वी आर परफॉर्मिंग. Peter Drucker emphasizes on the importance of having an appropriate structure when he says organization structure is an indispensable mean and wrong structure will seriously impair. क्यों? By अगर आई एम गिविंग यू टू एग्जाम्पल्स. एक कंपनी है जिसके पास दो अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, फुटवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स. अगर वो दोनों को क्लब अप करके एक ही जगह पे सारे काम करेगा, तो इट वुड बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर्स ऑफ नन. कंपनी बंद हो सकती है. ऑन द अदर हैंड, अगर उसके पास दो ही डिपार्टमेंट और उसने 4 डिविजन ओपन कर रखे हैं, दैट इज वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज. अगेन इट इज गोइंग टू बी लॉस. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान दें. द ऑर्गेनाइजेशन, अब ये आप लोगों को अंडरलाइन करके रखना है, बिकॉज दिस इज द वन विच कम्स इन योर एग्जाम. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क. दिस इज द फ्रेम यू हैव, जिसके अंदर आपके तस्वीर होती है. सिमिलरली दिस इज द फ्रेमवर्क, structure within which managerial operating tasks are to be performed. It specifies the relationship between people, work, and resources. It allows correlation and coordination among human, physical, and financial resources and enables the business to accomplish desired goals. अब हम कैसा फॉर्म ले सकते हैं वो भी हम करेंगे. This is one of the, if I say out of 10, this particular question has come for at least 9 times, so I'm not wrong. That is, what is span of management? Span of management to large extent gives shape to the organizational structure. आपको जो लिखना है वो ये आएगा. आपके पेपर के अंदर टॉल एंड शॉर्ट आपका स्ट्रक्चर आता है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर. यानी कि द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर. वी कैन हैव what you call a tall structure, we can have a short structure. Now, what is tall and what is short? मतलब मैनेजर और यहां पे इनके बीच में the number of people might be more. और इसमें ऐसा हो सकता है 1, 2, 3. तो tall is where द नंबर ऑफ हिरार्की के अंदर जो आपके, ये आपका समझ लीजिए, दिस पर्सन इज द रीजनल मैनेजर. आई एम सॉरी, दिस पर्सन इज द रीजनल मैनेजर. ही इज द जनरल मैनेजर. ही इज द जोनल मैनेजर. राइट. अब इस रीजनल मैनेजर और जनरल मैनेजर के बीच में देयर इज 1. इसके बीच में 2 लेवल्स है, इनके बीच में. तो ऐसे अगर ज्यादा लेवल्स होते हैं टॉल एंड अगर कम होते हैं शॉर्ट स्पैन हम बोलते हैं. एंड दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ हिरार्की द कंपनी इज मेकिंग. अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज essential to ensure smooth flow of communication and better control. The structure provides a framework which enables the enterprise as an integrated unit by regulating and coordinating the responsibilities. For example, अब ये जो सुनीता वाला ना, ये स्मिता करके आया था. ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है स्मिता करके. सुनीता ओपन हर ओन ट्रैवल एजेंसी. प्लीज इस एग्जाम्पल को इतने अच्छे से समझना.
उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी, बट आफ्टर डूइंग दिस फर्स्ट वन. The success of a travel agency depends upon harmonious relation between customer and employee. In order to achieve this objective, she has divided the work. यहां से आपके पेपर में जो क्वेश्चन है, you have to understand the entire work into 3 subhead. ठीक है, namely operation, sales and admin. Let me put it in this way. ये उसका काम है, उसका ओवरऑल जो है वो ट्रैवल है, और ट्रैवल के अंदर एक डिपार्टमेंट पूरा सेल्स देखेगा, एक डिपार्टमेंट पूरा टिकटिंग देखेगा, आई थिंक द सेकंड फर्स्ट वन इज ऑपरेशन, सॉरी, ऑपरेशंस देखेगा, एंड थर्ड वन विल बी एडमिन. ये छोटा है, दिस इज स्मॉल. ऑपरेशन मींस ट्रैवल काउंसलर, रिजर्वेशन, टिकटिंग, कस्टमर केयर, मतलब इनका काम होगा ये सारा. अगर कोई आपके पास इंक्वायरी लेकर आ रहा है तो उसको बताना, उसको रिजर्व करना, ये सारा काम उसका होगा. सेल्स मींस अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स बुककीपर, कैशियर, यूटिलिटी पर्सोनल, मतलब एचआर वगैरह सब उनका एडमिन के अंदर आता है. दिस division of work on the basis of function has resulted in an organizational structure specifying line of authority and responsibility. अब हमें ये पता है कि जो ये वाली डिपार्टमेंट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड इन सेल्स. तो सेल्स में कोई भी उतार चढ़ाव आएगा तो हमने ऑपरेशन या एडमिन को नहीं पूछना, हमने सेल्स को पूछना. Whereas anything related to counseling, reservation, ticketing और customer care is ticket operation. यानी कि उनकी responsibility है तो they are answerable. अब ये था organization structure. इसको जो ये वाला हमने पढ़ा, this is what we call as functional structure. Now what is the meaning of functional structure? फंक्शन का स्ट्रक्चर. फंक्शन का स्ट्रक्चर मतलब द वर्क इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस वी विल बी परफॉर्मिंग. किसी कंपनी में सिर्फ 3 डिपार्टमेंट होंगे, किसी कंपनी में 5 या 6 होंगे. ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर under functional and organizing these major as separate department create a functional structure. All departments report to coordinating head, मतलब उनका जो head है. For example, a manufacturing concern division of work into key will be production, purchase, marketing, accounts and personnel. फिर इनमें अंदर मतलब कि अंडर अकाउंट्स आपका जो है, देयर माइट बी अकाउंट्स में अलग अलग यूनिट्स होंगे, मार्केटिंग में अलग अलग यूनिट्स होंगे. दस अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड टुगेदर. आपके पेपर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. कभी ना कभी आप में से हर बच्चा मस्ट हैव गॉन टू एन ऑटोमोबाइल शॉप. कभी ना कभी तो आप में से हर बच्चा गया होगा. वेदर यू आर बाइंग अ स्कूटी और यू आर बाइंग अ कार, यू मस्ट हैव गॉन टू अ व्हाट यू कॉल एज शॉप, राइट? कभी ना कभी तो आप लोग गए होंगे, राइट? तो नाउ व्हाट हैपेंस, आप गए. लेट मी मतलब कि टेल यू, व्हेन यू एंटर्ड द शोरूम, आपने शोरूम को एंटर किया, राइट? शोरूम को एंटर करते ही क्या होगा, आपको वहां पर यू विल बी फाइंडिंग अ रिसेप्शन.
राइट, राइट, और यू विल गो इंक्वायर, ठीक है। नाउ देन यू वांट टू सी द व्हीकल, अब आपको व्हीकल को देखना है। व्हीकल को देखने के लिए देयर वुड बी वन पर्सोनल स्पेसिफिकली जो कि आपको व्हीकल दिखाएगा, उससे रिलेटेड आपको जो भी काउंसलिंग करनी है वो बताएगा, मतलब आपको समझाना है वो सारा करेगा। एंड एवरीथिंग टिल सेल्स उसका काम होगा, राइट, सेल्स तक उसका काम होगा। अब आपको अगले पड़ाव पर जाना है, यू हैव टू पे द मनी। तो आपको वो कहेंगे आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट या बिलिंग सेक्शन में चले जाइए जहां पर आपको पेमेंट करनी है, राइट। उसके बाद आपको जो है इफ यू वांट टू गो फॉर सम एक्सेसरीज, आपको कुछ एक्स्ट्रा खरीदना है तो उसके लिए देयर वुड बी वन मोर डिपार्टमेंट, वो कहेंगे आप उनसे यू हैव टू डील। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अब डिलीवरी लेनी है तो वो कहेंगे आपको जो है जाकर वर्कशॉप से डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यू हैव टू गो टू द वर्कशॉप एंड गेट द डिलीवरी। आया? अब ये जो काम को उस शोरूम ने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब सेल्स का जो काम होगा, मतलब जो भी इंसान सेल्स डिपार्टमेंट में होगा उसका काम, उसके मतलब उस डिपार्टमेंट में सेल्स का काम भी होगा, उस डिपार्टमेंट में उससे रिलेटेड आपके जो भी फंक्शंस होंगे वो भी होंगे, कोऑर्डिनेटिंग विद अनदर डिपार्टमेंट भी होगा। जब आपको बोला गया यू गो टू द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो हो सकता है कि जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उनको कहां से, इफ दे नीड मनी वो कहां से लाएंगे। अकाउंट्स के नीचे ही देयर माइट बी 3-4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो सैलरी जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनको देने वाला एक होगा, जो आपका कैशियर है वो एक होगा, और कोई काम होगा एंट्री वगैरह करनी, वहां पर अलग अलग यूनिट्स होंगे। सिमिलरली देयर माइट बी अनदर एक्सेसरीज एंड देन वर्कशॉप। वर्कशॉप में नई गाड़ियों के लिए, सर्विस के लिए, ऐसे करके अलग अलग यूनिट होंगे। बट ये सारे काम किसके लिए कर रहे हैं? व्हाट इज देयर एंटायर गोल? चाहे ये रिसेप्शनिस्ट हो या ये सेल्स वाला हो या अकाउंट्स वाला हो, सबका एक ही काम है, सेलिंग व्हीकल्स। और व्हीकल आपका सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शन है। कार आपके मतलब अलग अलग तरीके के कार, बट दे आर हैविंग सिमिलर फंक्शन। मतलब इस शोरूम के अंदर आपको कार और मतलब कि गारमेंट दोनों नहीं मिलेगा, यहाँ सिर्फ कार मिलेगा। और कार के परचेसिंग से रिलेटेड ही सारे काम हो रहे हैं, कार के सेलिंग से रिलेटेड ही सारे काम हो रहे हैं। इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। यानी कि व्हेन द स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे हैव टू परफॉर्म। और फंक्शंस कौन से होते हैं? परचेज, सेल्स, आपका मतलब ये डिपेंड करता है किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। व्हाई वी नीड फंक्शनल? कोई भी कंपनी जब स्टार्टिंग करती है ना तो फंक्शनल में ही स्टार्ट करती है, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत बड़ी कंपनी हो या उनके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो। फर्स्ट, इट लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल? सेल्स का जो इंसान है उसका ऑक्यूपेशन है सेल आउट करना, तो उस पर्टिकुलर फंक्शन में उससे रिलेटेड जो काम है दैट वुड बी मोर एफिशिएंट। इट प्रमोट्स efficiency in utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance। उनके टारगेट्स होते हैं, उनको इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी दिया जाता है। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट। आपस में कोऑर्डिनेट करना, एक मतलब कि पर्टिकुलर फंक्शन को कंट्रोल करना आसान होता है।
देन बिकॉज हम उन फंक्शंस में स्पेशलाइज्ड है, तो हमारा ऑपरेशनल एफिशिएंसी डेफिनेटली ज्यादा होगा। देन जैसे अगर मैं कहूं आपके पास, इफ अ कंपनी इज हैविंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल्स, तो काम डुप्लीकेट हो जाता है। इसमें डुप्लीकेशन नहीं होती है, तो पैसा आपका कम खर्चा हो। जिस एरिया में लोग काम कर रहे हैं, हमें ट्रेनिंग सिर्फ उसी एरिया को देना पड़ता है। एंड सारे जो हमारे फंक्शंस है, नाउ लेट अस कम टू दिस, कि अगर हम कहते हैं डिविजनल, तो डिविजनल के अंदर फंक्शनल भी आएगा, लेकिन फंक्शंस में डिवीजन नहीं आएगा। डिवीजन इज बिग। डिसएडवांटेज, इट प्लेसेस लेस एम्फसाइज ऑन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। सब अपने अपने फंक्शंस को, सेल्स वाला सोचता मैं अच्छे से सेल आउट करूं, परचेज वाला सोचता मैं लेसर अमाउंट को खर्च करूं, एचआर सोचता कि कम से कम रिसोर्स में मैं लोगों से काम करवाऊं। सो इट मे बी pursuing the departmental interest at the cost of organizational interest can be there, और वो इसमें नहीं उसमें भी होता है। It may lead to problems in coordination as information has to be exchanged across functionally differentiated departments. A conflict of interest may arise when the interests of two or more departments are not compatible. For example, the sales department insists on custom friendly design, whereas production कहेगा भाई ऐसा हम नहीं बना पाएंगे। This can be a place of conflict, हो सकता है आपस में झगड़ा हो। It may lead to inflexibility as people with same skills and knowledge may develop a narrow perspective। ये सबसे ज्यादा रहता, क्योंकि वी आर नाउ स्पेशलाइज इन सेल्स, हम अपने आप को इम्प्रूव करते ही नहीं है। भाई हम सेल्स में है, लेकिन हम कौन सी चीज को सेल आउट कर रहे हैं। अब क्या होता है, ऐसे लोगों को अगर बाय चांस नौकरी छोड़नी पड़ती है, तो देन दे आर वेरी मच बॉदर्ड, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट को, जिस फंक्शन को उन्होंने स्पेशलाइज किया होता है, इफ देयर इज नो जॉब या दूसरे जॉब में दे रिक्वायर मल्टीपल टास्किंग, ऐसे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। और आजकल जो वर्ल्ड है, सच्चाई वाला वर्ल्ड, वो है मल्टीपल टास्किंग। You should know marketing, you should know HR, you should know everything. If you are into the marketing, आपको फर्नीचर भी हैंडल करना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स को भी हैंडल करना चाहिए, आपको मोबाइल्स भी हैंडल। एंड इन अ फंक्शनल, नॉर्मली वी ओनली स्पेशलाइज इन दैट फंक्शन, एंड एड ऑन करने के लिए हमें दिक्कत होती। suitability, it is most suitable when the size is large, has diverse activity and operation and requires high degree। ये इसीलिए यहां लिखा गया है, क्योंकि जब हमारे डिविजन्स बनेंगे, तो कॉस्मेटिक्स के अंडर 10 डिपार्टमेंट्स होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 10 डिपार्टमेंट्स होंगे, फुटवेयर के अंदर 10 डिपार्टमेंट्स होंगे। तो जब ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहां पर आपको जो है सबको अपने अपने डिवीजन को देखना है, तो उस डिवीजन के अंडर हर एक फंक्शन को देखना पड़ता। दैट इज व्हाई it is written when the size of organization is large। Here I have clarified because many a times this is a controversial word कि भाई फंक्शन में तो हमें सिर्फ अपना ही काम करना है। काम तो करना है, बट हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जिन ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज को आप देखिए, देयर वर्क, डिजाइनिंग, एवरीथिंग डिपेंड्स। So this is basically what we call as organizational structure, or organizational structure में today we have discussed what is organizational structure and what is functional structure. In the second, we would be discussing what is divisional structure, then the
communication यानी कि formal and informal, then delegation, and last is decentralization. So this is what we call as first part, that is second part, organizing, right?